students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last few segments, we were discussing about this chapter, biotechnology principles and processes. तो actually हम लोग इसके tools and requirements की बात कर रहे थे, whatever is needed in terms of the molecular analogs, जो कि हमें इस process के लिए चाहिए होता है. So we have already talked about the enzymes as well as the foreign DNA जो actually हम लोग introduce करते हैं to make the genetically modified organism. Today we are going to talk about the vectors जो कि actually एक बहुत important part है when we want to transfer the DNA so as to make a genetically modified organism. So first we are going to talk about vectors as to what they are. Then we will further talk about the types of vectors which are generally used. Further हम लोग characteristic की बात करेंगे. Then we will be talking about the vectors which are used in case of different kinds of cells. जैसे कि plant cells में कौन सा use होता है, animal cells में कौन use होता है. And another tool or requirement in basically doing this process of biotechnology is that of the host. तो हम लोग ये भी जानेंगे कि host को competence कैसे दी जाती है so that it can be genetically modified. So let us begin. तो सबसे पहले जानते हैं vectors क्या होते हैं. तो like I said, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में होता क्या है, we take a foreign piece of DNA with the desirable gene, right? So this here is the foreign DNA. लेकिन अगर हम इस foreign DNA को directly introduce करेंगे into the genome of whatever cell or whatever host we want to genetically modified, तो बहुत possibility है कि this foreign DNA will not become part of the genome of the host cell and as a result हम लोग successfully biotechnology का process नहीं कर पाएंगे. So in this case what happens is foreign DNA को एक और DNA से associate किया जाता है and that DNA is that of the vector. Just like diseases के vectors होते हैं ना, वैसे ही there is a vector DNA which actually combines with the foreign DNA to form the recombinant DNA. Vector can be an organism or a piece of DNA as well. If the vector is an organism, तो उसके DNA से foreign DNA को जोड़ा जाता है and subsequently we get the recombinant vector जिसके अंदर recombinant DNA होता है and then this DNA is transferred into the host cell. तो बेसिकली यहाँ पर वेक्टर काम क्या कर रहा है, वेक्टर इज एक्टिंग एज अ ट्रांसपोर्टर और अ कैरियर ऑफ द फॉरेन डीएनए. सो वेक्टर से जुड़कर ही फॉरेन डीएनए कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द होस्ट सेल. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर वेक्टर की बहुत नेसेसिटी है बिकॉज विदाउट द वेक्टर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द फॉरेन डीएनए टू रेप्लिकेट एंड क्लोन inside the host cell. This vector, in fact, it also gives the ability to the recombinant DNA to replicate itself inside the host. तो cloning भी इसी vector की वजह से होगी, right? So that is how a vector is important in the process of biotechnology. आगे अगर बात करें about the types of vectors, तो they can be of 4 types. They can either be plasmids, they can be phages, or they can be a combination of plasmid and phages which are called as cosmids or phasmids. Right? तो अब यहाँ पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे on plasmid and phages. So let us know कि plasmid और phages क्या होते हैं and how they are able to transfer the foreign DNA into the host cell. Okay, so talking about the types of vectors, जो bacterial cell होता है उसी के अंदर अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोइड जो कि क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, राइट, इन द बैक्टीरियल सेल देयर आर आल्सो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब क्रोमोसोम के अलावा
So these are known as plasmids एंड बैक्टीरियल सेल में ये काफी कॉमन होते हैं, इवन दो इनमें कोई वाइटल जीन एज सच नहीं होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द डीएनए, हाउएवर दे कन्फर सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू द बैक्टीरियल सेल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लाज्मिड्स एक्चुअली ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरियल सेल। सो दीज कैन बी यूज्ड एज वेक्टर्स। अनदर थिंग इज द फेजेस, जो लैम्डा फेजेस होते हैं, they tend to in fact infect the bacterial cell. उनका जो DNA होता है it is generally linear double stranded DNA. So this linear double stranded DNA, इसके पास काफी sites होती हैं for the restriction enzymes to act, and so here also it can be used as a vector. तो basically होता क्या है, बैक्टीरियल सेल में जब इन्फेक्शन होता है तो इसी का DNA it goes into the bacterial cell, right, and it basically incorporates with the bacterial chromosome and starts to replicate. तो हम यही characteristic use कर सकते हैं in the process of making the recombinant DNA as well as in genetically modifying the host cell. So these are the two vectors which we generally used, और अगर इनका combination करते हैं तो we get cosmids and phasmids also, which can also be used as vectors. स्पेसिफिकली कुछ प्रोसेसेस के लिए या कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए हम लोग कॉस्मिड्स और फैस्मिड्स को भी यूज करते हैं, राइट। अब आ जाते हैं ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर्स। कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमारे कैरियर में होनी चाहिए? सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। द फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ origin of replication. The second is the presence of selectable markers. The third is the presence of cloning sites. And the fourth characteristic, which is actually small size of the vector. अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नाउ यू ऑलरेडी नो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो इनिशिएशन पॉइंट होता है। किसी भी डीएनए को अगर रेप्लिकेट करना है, इट शुड हैव एटलीस्ट वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। यहाँ पे इनिशिएशन होता है बिकॉज दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो भी प्रेजेंट होता है उसी के ऊपर बाइंड करते हैं हेलिकेजेस प्रोटीन्स जो कि इनिशिएट करते हैं द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर वेक्टर में नहीं हुआ, इट विल नॉट बी एबल टू क्लोन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनसाइड द होस्ट सेल। इसीलिए जरूरी है कि वेक्टर डीएनए के अंदर एटलीस्ट एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूर हो जहां से एक्चुअली इनिशिएट होगा रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। और दूसरी चीज ये है कि यही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जो साइट होती है वो ये भी कंट्रोल करती है कि कितनी बार रेप्लिकेशन होगा। It controls the number of replication. So replication के cycles होते हैं and it is controlled by this origin of replication. तो जिस recombinant DNA को actually हम लोगों को multiple copies बनानी होती है, हम उनको ऐसे vectors से join करते हैं जिनकी origin of replication support करती है multiple replication cycles, right? सो अकॉर्डिंगली हम लोग ऐसे ही वेक्टर को चूज करते हैं, ऐसे ही डीएनए को चूज करते हैं, वेक्टर डीएनए को चूज करते हैं जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये सपोर्ट कर पाए, राइट। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ये दोनों फंक्शंस हो गए, राइट। एंड यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो भी वेक्टर डीएनए, राइट, उसी से हम अपना फॉरेन डीएनए ऐड करते हैं। So this here is the foreign DNA. The pink side is the vector DNA, right? तो अगर vector DNA में यहाँ पे कहीं origin of replication है और I site है, तो that means यहाँ से जब initiate होगा replication, it will be able to clone the foreign DNA within itself, right?
तो ज़रूरी है कि फॉरेन डीएनए को हम ऐसे वेक्टर से ज्वाइन करें जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एटलीस्ट एक साइट तो होनी ही होनी है, राइट? तो ये हो गई फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. Now let us move on to the second characteristic, which is selectable markers. Moving on to selectable markers, तो basically selectable markers ऐसे टाइप के markers होते हैं जो actually detect करने में help करते हैं कि कौन सा host cell transform हुआ है, right? So selectable markers can be the genes of resistance to antibiotics, क्योंकि ये normal bacterial cells में generally नहीं present होता है. जैसे कि E. coli में, E. coli के normal में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में देर आर नो रेजिस्टेंस जीन फॉर एम्पिसिलिन, कानामाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल एक्सेट्रा. तो अगर हम नॉर्मल ई कोलाई सेल्स को इन पे प्लेट करेंगे दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो. लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेंस को इन्हीं पर प्लेट करते हैं, we plate it on ampicillin for example, right, they will be able to grow and the culture will become dense, right? तो इस तरीके से हम लोग एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स. तो सिलेक्टेबल मार्कर्स हमें यहाँ पे क्या हेल्प करता है? टू डिटेक्ट एंड आइसोलेट ट्रांसफॉर्मेंस and in turn eliminate non-transformants. And you must remember कि जो भी selectable markers as such हम लोग use करते हैं they are generally the resistance gene for certain antibiotics जिनके through हम actually transformation को easily detect कर पाएंगे, right? Now let us move on to the cloning sites. जो क्लोनिंग साइट्स होती हैं बेसिकली दे आर द साइट्स जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करती है, क्लीवेज करती है, राइट? सो क्लोनिंग साइट्स आर साइट्स फॉर क्लीवेज बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. एंड यू ऑलरेडी नो जो साइट होती है, जो भी क्लोनिंग साइट होगी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है विच इज नोन एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. सो दिस क्लोनिंग साइट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट? अब जो वेक्टर्स होते हैं ना उनमें अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए अलग अलग साइट्स हो सकती हैं जहाँ पे क्लीवेज होगा, बट प्रेफर ये किया जाता है कि एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो वेक्टर में, बिकॉज अगर दो से ज़्यादा जगह पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होंगे तो बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे वेक्टर के, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी डिफिकल्टी इन आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स एज वेल एज उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, राइट? So cloning sites होनी चाहिए, preferably there should be one palindromic sequence in the vector for each of the restriction endonuclease that we want to use. So I hope ये समझ में आ गया. अच्छा, एक और बात, जो restriction endonuclease हम लोग यहाँ पे use करते हैं to cleave the vector, उसी को हम use करते हैं to cleave the foreign DNA also. And that is how we get the same sequence. जो complementary sequence होता है ना वो same मिल जाता है, and that is how we can actually join the vector and the foreign DNA. तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के लिए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या फिर क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट हो इन द वेक्टर्स. एंड द लास्ट थिंग इज स्मॉल साइज. देखो जनरली ये प्रेफर किया जाता है कि 10 किलो बेस से छोटा होना चाहिए वेक्टर. दिस इज बिकॉज जितना छोटा वेक्टर होगा उसको ईजी होगा हैंडल करना, बिकॉज जब बहुत बड़ा वेक्टर होता है तो आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन प्रोसेस में देर इज अ रिस्क ऑफ इट ब्रेकिंग ऑफ. ऑल्सो देर विल बी डिफिकल्टी इन मॉडिफाइंग द वेक्टर जब हम लोगों को आइडियली एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होगा. सो दैट इज वाई इट इज प्रिफर्ड कि वो स्मॉल साइज का हो.
नाउ सिंस यू नाउ नो ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक, तो अब हम लोग एक वेक्टर को देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी how these characteristic or rather these sites are present in that vector and how they are going to help the vector to actually be transformed as well as detect करने में help करेंगे जो भी host cell transform हुआ होगा from the non-transformants. Let us take the examples of PBr322 plasmid vector. Okay. So here this is a visual representation of the PBr322 vector plasmid which is used for cloning in E. coli. ठीक है, तो ये इसको E. coli में generally हम लोग use करते हैं as a vector. तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो when we were studying about the characteristic, तो जितनी भी characteristic, जितनी भी sites हमने यहाँ पे देखी थी, they are all present here. So for example, first let us look at the resistance sites. तो ये होती हैं selectable markers. So here as you can see there are two of these resistance genes which are present. तो ये वाली जो genes होते हैं they act as selectable markers. So here there is ampicillin resistance gene and tetracycline resistance gene. Then we had also talked about the origin of replication, जहाँ पे initiation होता है replication का. So as you can see here, this site is actually the origin of replication. Apart from that, ROP, this stands for actually replication proteins. They code for the proteins which are required in the replication of this particular plasmid. So this is another thing. Apart from that, we had talked about the cloning site. अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी सारी restriction enzymes के लिए specific cloning sites हैं, such as PVU2, PVU1. तो restriction enzyme PVU1 यहीं पर इस particular plasmid को cleave करेगी. So there is one site here. Then apart from that, there are so many other sites also, ECOR1, CLA1, HIND2, BAMH1, SAL1, PST1, right? So ये सब अलग अलग restriction enzymes के लिए अलग अलग cleaving sites हैं, right? अब देखो, अब यहाँ पे समझो कि कैसे transformants को non-transformants से isolate किया जाता है. So for example, we insert a foreign DNA into this particular plasmid. तो हमने चूज किया BAMH1 site. हमने ली BAMH1 restriction endonuclease and we cleave this particular plasmid at this point और यहाँ पे हमने foreign DNA introduce कर दिया, right? तो अब यहाँ पे देखो तो tetracycline resistance gene भी यहीं पे located है. So as a result of introduction of foreign DNA, जब foreign DNA यहाँ पर introduce होगा, right? तो यहाँ पर जब foreign DNA introduce होगा, what is going to happen? This tetracycline resistance gene will become non-functional. अब क्योंकि ये non-functional हो गया है, there is one functional gene, there is one non-functional gene, तो actually हम इन्हीं दोनों को as selectable markers use कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन कौन से हैं, किसमें ये रेजिस्टेंस जीन एक्चुअली आया है. तो सबसे पहले अगर हम लोग एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेंगे, राइट, तो ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होंगे दे विल ग्रो, जबकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होंगे दे विल डाई. तो सबसे पहले तो हमने ट्रांसफॉर्मेंट्स निकाल लिया बाय प्लेटिंग दीज प्लाज्मिड्स ऑन एम्पिसिलिन मीडियम. दूसरा, अब हम इनको चेंज करेंगे, प्लेटिंग चेंज करेंगे इनटू टेट्रासाइक्लिन मीडियम. टेट्रासाइक्लिन मीडियम में क्या होगा, इन्हीं ट्रांसफॉर्मेंट्स में से जिनमें रिकॉम्बिनेशन हो पाया होगा, जिनमें फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस हो पाया होगा, विल दे बी एबल टू ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन? नो, टेट्रासाइक्लिन के अंदर दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो. जबकि द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और अदर द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स they will be able to grow in tetracycline, isn't it? So यहाँ पे देखो दो selectable markers use किए हमने. पहले को हमने इसलिए यूज किया कि आइडेंटिफाई कर सके कि किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, विच आर द ट्रांसफॉर्मेंट्स जिसमें एक्चुअली ये रेजिस्टेंस जीन इंट्रोड्यूस कर पाए हैं हम, राइट. एंड दूसरा, टेट्रासाइक्लिन एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हमने यूज किया टू डिफाइन कि कौन कौन सा रिकम्बाइन कर चुका है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है, राइट. सो दैट इज हाउ द टू सिलेक्टेबल मार्कर्स आर यूज्ड for isolating the transformants in one case and then the recombinants in the other case, right. So ampicillin here, it basically helps us to detect the transformants, whereas the tetracycline there,
it helps us to detect the recombinants. अब देखो, जब हम प्लेटिंग करेंगे, अलग अलग एंटीबायोटिक्स पे एक्चुअली हम लोग ये पूरा कल्चर इंट्रोड्यूस करेंगे, इट विल बी अ कम्बसम प्रोसेस, राइट? तो इसको आसान करने के लिए देयर इज अनदर मेथड वेरिन एक एंजाइम होती है बाय द नेम ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो हम लोग करते क्या हैं, उसी एंजाइम के साइट पर हम फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर हम डालते हैं क्रोमाजेनिक सब्सटेंस। अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम होती है, if the beta galactosidase enzyme is active, then chromogenic substance जो होता है, it turns into blue color and this denotes कि beta galactosidase enzyme inactivated नहीं है। जबकि अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज के ही साइट पर हम फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दें तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगी और इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि हमने बीटा गैलेक्टोसिडेज की साइट में इंसर्ट किया है फॉरेन डीएनए, बिकॉज ऑफ विच इसका इनएक्टिवेशन हो गया है। सो दैट इज व्हाई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज का इनएक्टिवेशन हो गया है तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ इट विल नॉट गिव ब्लू कलर, राइट? तो देन वी कैन आइडेंटिफाई थ्रू दिस कि फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ है। सो इस कम्बसम प्रोसेस को प्लेटिंग, साइमल्टेनियस प्लेटिंग जिसमें करनी पड़े, उसको हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। इनफैक्ट वी प्रेफर दिस मेथड विच इज comparatively easier to do, and accordingly we can isolate the recombinants and eliminate the non-recombinants, right? तो I hope ये अच्छे से समझ में आ गया है how the plasmid is, how the vector is, कौन कौन सी sites उसमें important होती हैं। Now let us move on to vectors which are used in plants and animal cells. Okay, so अभी तक जो हमने बात करी about vectors, we have talked about bacterial host. Bacterial host में as such हम लोग कौन कौन से vectors use कर सकते हैं? हम लोग use कर सकते हैं plasmids as well as we can use the bacteriophages. But when we talk about the eukaryotic cells such as plant and animal cells, तो हमें use करने पड़ते हैं either the retroviruses which can actually take the foreign DNA and introduce it into the host cell, या फिर हम बैक्टीरियल सेल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि स्पेशली प्लांट्स के केसेस में देयर इज अ बैक्टीरियम, अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम बाय द नेम ऑफ एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens. तो बेसिकली इट कॉजेज क्राउन गॉल डिजीज इन वेरियस डाइकॉट प्लांट्स। और ये करता क्या है, एक सेगमेंट होता है टीडीएनए, उसको इंट्रोड्यूस कर देता है इनटू द प्लांट cells, and because of which the normal cells they are transformed into tumor cells. इनफैक्ट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के जो सेल्स होते हैं, इन्फेक्टिव सेल्स होते हैं, उनमें टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। Again, this plasmid is used to confer the characteristic of tumor cell into the normal plant cells. अब इसी TI प्लाज्मिड को एज वेक्टर यूज करना स्टार्ट कर दिया गया है। इस TI प्लाज्मिड में से जो एक्चुअली ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन है उसको हटा दिया गया है, बिकॉज ऑफ विच द बैक्टीरियम इट बिकम्स नॉन पैथोजेनिक and then the foreign DNA is introduced and accordingly इस TI प्लाज्मिड को यूज करके हम प्लांट का जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने लगे। Then if we talk about the animals, तो एनिमल्स में जनरली रेट्रोवायरसेस यूज किए जाते हैं। रेट्रोवायरसेस those viruses जिनमें RNA is the genetic material. तो generally retroviruses they cause diseases in animals. They are pathogenic in nature. However, when we are using them as vectors, तो हम इनका जो segment होता है genetic material का, which is causing that particular tumor or cancerous growth in the animals, उसको हम हटा देते हैं and subsequently इसका recombinant DNA बनाते हैं, which can then be introduced into the animal cells, right? So this was about the kind of vectors that we can use in case of bacteria. Already हमने पढ़ लिया in case of plants and in case of animals. Now let us move on to the last topic for today, which is competence of host. Okay, so in competence of host we are going to study कि host को कैसे competence दिया जाता है to take up the foreign DNA. तो देखो, we already know जो DNA होता है it is a hydrophilic molecule, right? लेकिन
लिपिड की जो बायलेयर होती है, जो कि सेल में एक्चुअली प्रेजेंट होती है, दैट इज हाइड्रोफोबिक, राइट। तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली डीएनए एज सच पास नहीं हो सकता है थ्रू दिस लिपिड बायलेयर। तो इसी वजह से होस्ट को कॉम्पिटेंस दिया जाता है, होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, सो दैट इट मे टेक अप दिस डीएनए प्लाज्मिड ऑफ द वेक्टर। तो होता क्या है, बैक्टीरियल सेल्स की जो लिपिड बायलेयर होती है उसको पोरस बनाया जाता है बाय एक्चुअली फर्स्ट incubating it with divalent calcium ions, राइट। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल की वॉल होती है इट बिकम्स पोरस, उसमें पोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए कैन बी टेकन इन। नाउ फॉर डीएनए टू बी टेकन इन अगेन देयर आर सर्टेन मेथड्स व्हिच आर यूज्ड। तो जो मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या किया जाता है, डीएनए जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है अलॉन्ग विद द बैक्टीरियल सेल, जिसको हम ऑलरेडी कैल्शियम आयन से ट्रीट कर चुके होते हैं, दे आर इंक्यूबेटेड ऑन आइस। This is in fact followed by a heat shock, expose करते हैं to almost 42 degrees Celsius, which is known as heat shock, and then again incubation on ice. And by performing this process, क्या होता है, बैक्टीरियल सेल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने सेल के अंदर ले लेते हैं। So that is how competence of host establish किया जाता है, right? So this was all about the tools and requirements, molecular analogs जो हमें चाहिए होते हैं in the process of biotechnology. In the next class, we are going to go ahead and discuss the process of biotechnology in detail. Till then, revise all this. Stay tuned. Thank you.